السلام علیکم بولیوز خوش آمدید، میں ہوں شرزیل ارشاد اور میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ شوال 1446 ہجری کے چاند کی رویت کے لیے مرکزی کمیٹی کا اجلاس 30 مارچ کو ہوگا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس وزارت مذہبی امور اسلام آباد میں ہوگا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد رویت ہلال کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ زونل کمیٹی کے اجلاس مقررہ مقامات پر ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز جمعہ کی سعادت حاصل کی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد عمرہ کی ادائیگی کے لیے اپنے وفد کے ہمراہ بذریعہ ٹرین مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کی۔ دورے کے پہلے روز وفد کے ہمراہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات بھی کی، جس میں دو طرفہ تعلقات میں استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے تیار۔ اسٹار لنک کے پاکستان میں آپریشن کے حوالے سے اہم پیش رفت ہو گئی ہے۔ پاکستان اسپیس ریگولیٹری بورڈ نے اسٹار لنک کو NOC جاری کر دیا ہے، جس سے اسٹار لنک کو PTA کی جانب سے لائسنس جاری ہونے کی راہ ہموار ہو گئی۔ وزارت داخلہ کی کلیئرنس کے بعد بورڈ نے اسٹار لنک NOC جاری کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PTA لائسنس جاری کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 ہفتے کا وقت لے سکتا ہے۔ PTA اسٹار لنک کے متعلقہ اداروں سے حاصل NOC کا جائزہ لے گا۔ اسٹار لنک کو لائسنس ملنے کے بعد پاکستان میں آپریٹ کرنے کے لیے کم سے کم 1 سال کا وقت درکار ہوگا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بغیر اجازت احتجاج کرنے پر عورت مارچ قیادت کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ پرامن اسمبلی ایکٹ کے سیکشن 8 کے تحت درج کیا گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق فرزانہ باری نے 100 سے 150 خواتین کے ہمراہ احتجاج کیا۔ صدر مسلم طلبہ اور اسلامی نظریاتی پارٹی کے 50 سے زائد کارکنان نے شہید ملت چوک پر مارچ کی شرکا کو روکنے کی کوشش کی۔ دونوں گروپس نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی۔ چوک کو بلاک کیا گیا۔ فریقین احتجاج سے قبل NOC نہ لیا۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 کے تحت ہر قسم کے احتجاج پر پابندی عائد ہے۔ بتائیں کہ شاہینوں کا کیویز کے خلاف T20 سیریز میں دھماکے دار کم بیک۔ تیسرے میچ میں نیوزی لینڈ کو 9 وکٹوں سے دھول چٹا دی۔ آکلینڈ میں پاکستان نے 205 رنز کا ہدف صرف 16 اوورز میں حاصل کر لیا۔ حسن نواز نے ناقابل شکست سینچری اور کپتان سلمان آغا نے نصف سینچری داغ دی۔ پاکستان نے T20 انٹرنیشنل فارمیٹ میں کم سے کم اوورز میں 200 سے زائد رنز کا ہدف حاصل کرنے کا عالمی ریکارڈ بنا لیا۔ اور ناظرین، ابتدائی 2 میچز میں 0 پر آؤٹ، لیکن تیسرے T20 میں تو کمال ہی کر دکھایا۔ پاکستان کے 22 سالہ اوپنر حسن نواز چھا گئے۔ 44 گیندوں پر پاکستان کی جانب سے تیز ترین سینچری داغ دی، 7 چھکے اور 10 چوکے بھی لگائے۔ 45 بالز پر 105 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ پہلے 2 میچز میں 1 رن بھی نہ بنا سکا، جس پر بہت دل برداشتہ تھا۔ کپتان اور نائب کپتان نے اعتماد دیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں پہلا رن بنا تو دباؤ ختم ہو چکا۔ میچ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ حاصل کرنے والے حسن نواز کی گفتگو، کہا کپتان کے سپورٹ سے ہی بڑی اننگز کھیلنے میں کامیاب ہوا۔ طیہ سے تعلق رکھنے والے پاکستانی کرکٹر حسن نواز نے نیوزی لینڈ کے خلاف جاری میچ میں تیز ترین سینچری بنا کر پاکستان کو کامیاب کیا۔ اس وقت ہماری نمائندے خضر حبیب بلوچ حسن نواز کے گھر والدہ کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خضر، آگاہ کیجیے گا، والدہ کتنی خوش دکھائی دے رہی ہیں؟ آج بالکل میں سے لیا میں حسن نواز کے گھر موجود ہوں۔ حسن نواز نے جو ہے نیوزی لینڈ کے خلاف تیز ترین سینچری بنائی ہے اور پاکستان کو کامیاب کرائے۔ ہمارے ساتھ جو ہے حسن نواز کی والدہ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج ان میں کیا خوشی کی لہر ہے اور کیا کہیں گے بیٹے کی کامیابی پہ۔ میں کہا ہمارا بیٹا بھی ہمارے ملک کی نام سے ہی ہے ماشاءاللہ کہ پاکستان کا گیا ہوا ہے، تو ہم سب کی دعا پاکستان کے لیے تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو سب کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ حسن کو جتوا، ہم کہہ رہے تھے اللہ پاک جو یہاں سے گئے ہوئے نا سب ہماری پوری ٹیم جیت کے ہمارا ملک جیتے۔ اور ویسے حسن کا اپنا شوق تھا، اس کی اپنی خواہش تھی کہ میں اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کروں گا، فخر بنوں گا اور اس کے لیے اپنا نام روشن کروں گا۔ ان کا جو کہنا ہے کہ یہاں پر اس وقت جو ہے ہم انتہائی خوش ہیں اور علاقے میں جو ہے خوشی کی لہر۔ اور نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے T20 میں حارث رؤف کے ناقابل یقین کیچ کے چرچے۔ حارث نے شاہین افریدی کی گیند پر فن ایلن کا ہوا میں ڈائیو لگا کر شاندار کیچ لیا۔
शाहीनों का T20 सीरीज में शानदार कमबैक, तीसरे मैच में कीवीज के छक्के छुड़ा दिए, 9 विकेटों से फतह समेट ली। कामयाबी पर शायकीन काफी खुश हैं, क्या कहते हैं सुनते हैं। जीतता तो हमें ज़्यादा खुशी होती है और आइंदा अपने टीमों में बेहतरी लेकर आएँ और मज़ीद जो है वो उसके ऊपर जो है काम करें। आज तो ये जो पाकिस्तान अपना मैच जीता है इस पे हमें खुशी तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो 50 मैचेस हारे हुए हैं अपने, उसके बदले में अगर ये एक मैच जीतेंगे तो हमारे ज़ख्म भरेंगे नहीं। पाकिस्तानी टीम पे इतना बड़ा पीसीबी की तरफ से खर्चा किया जाता है। केडन पार्क में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 इफ्तार के वक्त मैच को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, लाखों मोतकफीन एतकाफ में बैठ गए। कहते हैं पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करेंगे। इस्लामाबाद की सबसे बड़ी फैसल मस्जिद में एतकाफ के हवाले से क्या सूरत हाल है, मजीद बता रहे हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसल मस्जिद में मौजूद हूँ और इस वक्त यहाँ पे 500 से ज़ायद लोग जो है वो इत्काफ़ बैठ चुके हैं। इस्लामाबाद की जो मुख्तलिफ़ मसाजिद हैं, जैसे लाल मस्जिद है, जामिया मस्जिद उस्मान गनी है, इसी तरह मुख्तलिफ़ मसाजिद हैं जहाँ पे इत्काफ़ करने वालों की बड़ी तादाद जो है वो मसाजिद में इत्काफ़ के लिए बैठ चुकी है। मसाजिद में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए फैसल मस्जिद की, तो यहाँ पर एक सिलेक्शन का तरीक़ाकार था, उसकी लिस्टें बनाई गई और उन लिस्टों के बाद उन लोगों की सिलेक्शन की गई। यहाँ पे जो इत्काफ़ बैठने वाले हैं उनके लिए मेडिकल समेत दीगर सहूलियात का एहतमाम किया गया है और उनको खाना पीना जो है उनके लिए यहाँ पे कैंटीन्स लगाई गई हैं ताकि लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी से खुद जो कुछ खाना चाहें वो खा सकें। लेकिन इसके अलावा किसी किस्म के एक्सपेंस जो है वो फैसल मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से इत्काफ़ का। बहुत शुक्रिया अली शेर अपडेट करने के लिए। लाहौर में बड़ी तादाद में शहरी एहतिकाफ में बैठे हैं। लाहौर से जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप। इसी तरह लाहौर में भी आज हज़ारों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ़ में बैठेंगे और सबसे बड़ा जो शहरी एतकाफ़ है वो मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम यहाँ पर सज चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिनहाजुल कुरान में और मेरे साथ मुंतज़मीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा इस बार कितने जो फर्जंदान इस्लाम हैं वो बैठे हैं यहाँ पर, ख़वातीन का भी बहुत बड़ा एतकाफ़ बैठने का एहतमाम किया गया और क्या कुछ इंतज़ामात किए हैं इंतज़ामिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये 32वां शहर एतकाफ़ सजा आज। इसमें 10,000 से ज़ायद मर्द हैं और 5,000 से ज़ायद ख़वातीन हैं जो एतकाफ़ बैठे हैं आज। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चांद रात तक सिलसिला जारी रहेगा। ज़िक्र व अस्कार की महफ़िल होंगी। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी लज़्ज़त तौहीद और इश्क़ इलाही के मौजू पर रोज़ाना नमाज़ तरावी के बाद खिताबात करेंगे। जी बिल्कुल, 15,000 से ज़ायद मर्द। आपका बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में शहर क़ायद की मुख्तलिफ शाहराहों पर इफ्तार के दस्तरख़्वान सज गए। वाटर पम्प चौरंगी पर भी तालिब इल्मों ने इफ्तारी का एहतमाम किया है। हमारे नुमाइंदे साद शरीफ वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। साद बताइए। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है और अगर बात की जाए अफ्तार के दस्तरखान की तो शहर क़ायद के मुख्तलिफ मकामात पर हम देखते हैं कि रोड अफ्तार भी कराई जा रही होती है। जिस तरीके से घर पे सर्व किया जा रहा था, बिल्कुल इसी तरीके से कराची के नौजवानों ने ये बेड़ा उठाया है कि सड़क किनारे अफ्तार कराई जाती है। बहुत से लोग जो रास्ते में गुजर रहे होते हैं और चलते चलते उनको अफ्तार का वक्त हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अफ्तार का वक्त है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से शहरी बैठे हुए हैं। कैमरामैन आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। जो ख़ास तौर पर जो मुसाफिर होते हैं, जो रोड से गुजर रहे होते हैं, उनके लिए अफ्तार का मुख्तलिफ जगहों पे बंदोबस्त किया जाता है। जी आपको बताएं कि आज मुल्क भर में यौम फतह मक्का मनाया जा रहा है। 20 रमज़ान सन 8 हिजरी में मुसलमानों को अल्लाह पाक ने अजीम फतह दिलाई। इस अजीम दिन की याद में देखते हैं रिपोर्ट। अब आपको बताएं कि गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वजारत सेहत का दौरा। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की। वजारत सेहत का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। कहा बतौर मेयर कराची आपकी खिदमात और कारकर्दगी काबिल तहसीन है। KP में सेहत आमा की बेहतरी के लिए मुश्तरक इक़दामात और ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ सेहत के शोबे में मिलकर काम करेगी। सेहत की सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे।
सिंध असम्बली इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार ख्याल। बोले मुल्की हालात के बायस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में गया। KP और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की लहर है। उनका कहना था कि सिंध ने बहुत बुरा वक्त भी देखा है। हमारे शहरी इलाकों में रोज़ाना लाशें गिरती थीं। जो मुल्क में इस वक्त हालात हैं, जिस सिलसिले में मैं एक दिन इस्लामाबाद भी गया था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसकी मीटिंग थी, उस सिलसिले में दहशत गर्दी की लहर दौड़ी हुई है, ख़ास तौर पे हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में, सूबे बलूचिस्तान में। और हम ये जानते हैं कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कहीं और ये मसला है। मैं ये कह सकता हूँ कि बेहतर है, इससे बेहतर भी रहा है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन हुकूमत सिंध इंशाअल्लाह ताला अपने इस सूबे के लोगों की उम्मीदों पे कुल उनके जो अहम से तवक्कुआत उन पे पूरा उतरेंगे। और नई कैनाज बनने का दर्द हम सबको है, लेकिन कराची के पानी का दर्द भी महसूस करें। सिंध असम्बली इजलास में अपोजिशन रहनुमा अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध का पानी कराची आते आते सिंध खत्म हो जाता है। क्या कराची वाला सिंध ही नहीं है? बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जहां स्कीमें दी हुई हैं और आज तक इन स्कीमों पर 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। 9 महीने गुजर गए मगर कश्मोर के लिए महकमा ज़राअत ने जो स्कीम रखी उस पर कोई काम नहीं हुआ। थरपाकर में 2 स्कीमें हैं मगर उन पर 0 रुपए खर्च हुए हैं। ये पैसा आवाम का है, आवाम के नुमाइंदे पैसे खर्च करना चाहते हैं लेकिन सरकारी बाबू काम नहीं करने देते। पानी के ऊपर मसला था, 2003 में भी मसला आया था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितने सिंध के साथ मोहब्बत करने वाली जमातें हुई थी, उस वक्त भी खड़ी हुई थी और आज भी खड़ी हुई हैं। पिछले 17 सालों से इस शहर की जरूरत 1200 MGD पानी है पर डे। पिछले 17 सालों से सिंध के हुक्मरानों ने कराची वाले यानी कि सिंध वालों का पानी बंद करके रखा हुआ है। आपका अमल बता रहा है कि आप गलत बात कर रहे हैं, कि आप पे अभी सिर्फ बात हो रही है कि कैनाल बनने वाला है, सिंध का पानी खत्म होने वाला है, तो बड़ा दर्द हो रहा है। हमें भी दर्द हो रहा है भाई, हमें भी दर्द हो रहा है। एक दर्द जो आपने 17 सालों से दिया हुआ है उसका क्या करें जनाब। और भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से यौम पाकिस्तान की तकरीब का पुरवकार इनेकाद हुआ। अहम सियासी शख्सियात, सफारतकार, ताजिर, मीडिया के नुमाइंदे और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।